अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाजरीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें जुर्म करने वाला और जिस पर जुल्म हुआ वो कोई बड़े रईस या जागीरदार नहीं बल्कि आम मजदूर लोग हैं। मांगा मंडी पुलिस स्टेशन की हदूद में रहने वाला एक खानदान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए फ्रूट मंडी में कारोबार करता है। इस सीजन में उन्होंने माल्टे और किन्नू का कारोबार शुरू किया जिसमें 2 बेटे और एक उनका बाप शामिल थे। ये लोग अपने घर के करीब एक खाली प्लाट में किन्नू फरोख्त करते और गदा गाड़ी भी वहीं खड़ी करते। इसी प्लाट के एक कोने में एक शख्स गाड़ियों के टायरों को पंक्चर लगाता था जिसने अपने शौक की खातिर मुर्गियां और कुत्ते पाल रखे थे। मामूली सी बात पर तल्ख कलामी हुई। मकतूल को कहा गया कि वो अपना गधा यहां से हटा ले। मकतूल ने जवाब दिया कि ये प्लाट ना तुम्हारा है ना हमारा, तुम भी मेहनत करते हो और हम भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बात हाथापाई तक पहुंची और फिर नौबत इस नहज पर जा पहुंची कि बाप और बेटों पर असले से हमला किया गया। नतीजे में एक बेटा मौके पर दम तोड़ गया और दूसरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब सवाल यह है कि मुलजिम के साथ क्या हुआ और मकतूल के खानदान का दुख किस तरह बढ़ा। आइए सुनते हैं उसकी मां और बाप की जुबानी जिनके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको आज के जुर्म अंजाम के जो केस है उसके हवाले से तफसीलात बताई जो मांगा मंडी के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो नौजवान मकतूल था और जो ज़ख्मी है उनकी वालिदा और वालिद हैं जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, किस वजह पे कत्ल किया गया और पुलिस इनको इंसाफ दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। मुलजमान तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दसो अपना तुसी बीबी के की होया, ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ किस तरह लड़ाई झगड़ा होया ते कत्ल क्यों करता गया और दूसरा बेटा जख्मी है। छोटी जी लड़ाई हुई है खोते ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੜਈਆ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਛਡਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ CCTV ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਨ। 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਬੇਟੀਆਂ 4 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ 2 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ, ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ऐसे इलाके का ही रहना ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਤਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ। ਵੇਚਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਸਨ? ਕੱਲੀ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਪੈੜੀ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਤੁੱਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਨੇ ਦੇਗਾ, ਗਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਕੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਤੇ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਚਲੋ ਪਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵੇਚ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਬੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੱਥੋਂ ਹੈ। ਬੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਅੱਲਾ ਮਰੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਿਆ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਪਟਈਏ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਲੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਲ ਕਿਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। IG ਪੰਜਾਬ। IG ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ CCTV ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਰਿਆਮ ਪੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਰੋਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ,
ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ CCTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਜੁਰਮ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਡੇ ਲੈਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਟਾਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ CCTV ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ CCTV ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ SP ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਵਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, CM ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਦੇਖ। ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋ ਤਫਸੀਲ। ਬਸ ਇਹ ਪੱਠੇ ਪਾਣੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੈਗੀ। ਥਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ, ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ? 3 ਸਾਲ ਦਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ? ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਵਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, CCTV ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਡਕੈਤ, ਚੋਰ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5 7 10। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ। ਪਾਪਾ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਚਾਚੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਆਈਏ? ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਕਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ? मजदूर बंदा अपनी दिहाड़ी कमा के बच्चे पालेगा, 7-8 की करेगा? इस केस से जुड़े और लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हर माह कोई ना कोई बाप अपने जवान बेटे की मौत पर गमज़दा होता है, लेकिन ऐसे खानदान के बेटे को हर शख्स याद करता है जो फर्माबरदार हो, मोहल्ले में किसी के साथ ना इत्तफाकी ना रखता हो और सबको अपना समझता हो। यही वजह है कि इस वाक़े ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया है। अब हम आपको सुनवाते हैं मोहल्लेदार ख़वातीन की ज़ुबानी कि वो इस नौजवान के बारे में क्या कहती हैं और इसके जाने के बाद मोहल्ले में किस तरह का खला महसूस होता है। भाई मैं तो घरों गई हाँ ना, तो मैं मोड़ ते गई हाँ। 2-3 लोग, 3 ये सीगे ते 2-3 होर लोग सी। ये जदों मैं इत्थों मोड़ तो मुड़ी ना, यह भाई जिहड़ा मौजम सीगा ये अगे अगे गया है। इस तो मैं इत्थों हर मोड़ ते गई, इन्होंने गली च वापस बाजार च आ गए ने। तो मैं तो खलो के देखने लग पई, मैं कि लड़ाई तो खत्म हो गई, हुण मेरा तो अगे जाना नहीं बनता। तो मैं तो खलो के देखने कि बच्चा इधरों पिस्तौल लैके शरेआम इस तरह लैके आंदा पिया है, लुकोया भी नहीं होया। तो मैं उस बना से ना मैं मगर तुरी गई हाँ। मैं कि लड़ाई तो इन्हों की खत्म हो गई है, तो ये पिस्तौल किधर लैके जाता पिया है। हजे मैं तोड़ नहीं पहुँची, पहले भज के उन्हें वड्डे नूं मार दी, फिर उन्हें छोटे नूं मार दी। वजह वही गधे नूं पट्ठे पाने गया सीगा। लड़ाई भी खत्म हो गई सी। जिहड़ा बच्चा फौत हो गया ना, वो तो परन मुड़ गया बेचारा, वो तो परली साइड नूं चला गया। जिहड़ा छोटा ये उरां नूं मुड़िया आया, उन्होंने कोई पता नहीं, भज भज के उन्होंने मारिया पिछों उस मुंडे। बहुत अच्छे बच्चे ने भाई, यकीन करो इन्ने ने साडे कोल पले ने। एक मैं नहीं, किसी नूं भी बुला के तुसीं पुछ लो, सानूं कोई बुला के नहीं लियाए। असीं तुहानूं वेख के साडे बच्चों ने दस्सिया, खुद ही भजे आने आ। ठीक है, सानूं दर्द बहुत है उस बच्चे का। इन्ने अच्छे बच्चे सी ना, जिन्ना झूठ बोलो ना थोड़ा है। ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਜ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਗਰਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਗਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਮਰ ਪਏ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਨ ਵੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। 4 ਭੈਣਾਂ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ, ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। नाज़रीन, एक बेटे की मौत का दुख सिर्फ उसके वालिदैन और बहन भाई ही नहीं सहते, बल्कि पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक होता है। यही वजह है कि अहले इलाका और मकतूल के उस्ताद
उस नौजवान के बारे में अपनी राय देते हैं। वो उसके किरदार, उसकी मेहनत और उसके रवैये को याद करते हैं और ये बताते हैं कि उसके जाने के बाद मोहल्ले में किस तरह का खला पैदा हो गया है। आइए सुनते हैं वहां मौजूद अहले इलाका और मकतूल के उस्ताद की जुबानी कि वो इस नौजवान और उसके खानदान के बारे में क्या कहते हैं। ख़वातीन जो हैं वो भी अपने दुख का इजहार कर रही थी, जो मोहल्लेदार थी ख़वातीन, और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो रिश्तेदार भी हैं और इस मोहल्ले के रहने वाले भी हैं और मौके पे चशमदीद गवाह भी हैं। इनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं कि बहुत मामूली सी तल्ख़ कलामी जो है वो इस हद तक बढ़ गई कि गोलियां चल गई और एक नौजवान की जान चली गई और दूसरा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बुजुर्गो तुसी दसो की होया, तुसी मौके ते गवाह हो? छोटे तो लैके हुण तक यानी कि 30-32 साल की उम्र वड्डे दी सी ते कोई 26-27 साल छोटे दी है, इन्नी ते है ना। ते दोनों बच्चे साढ़े हत्थां 'च ही जवान होए ने ते असी यानी कि ये कहांगे क्योंकि उन्हां दा वालिद भी मौजूद है, वालदा भी मौजूद है कि उन्हां दे विच चलो माड़ी मोटी गलबात ते अक्सर घर दे विच भी बाहर बच्चे बुच्चे भी कर लैंदे ने, लेकिन उन्हां लड़ाई अज तक बाहर किते भी नहीं कीती ना। क्योंकि इस चीज़ का असीं सबूत देंगे, पूरा महला देगा, 200 घर भी इस गल की गवाही देंगे कि इस महल्ले च, उस महल्ले चौक च, पूरी मंडी च किते वो नहीं अज तक लड़े। ठीक है, मतलब किरदार दे बहुत अच्छे और शरीफ लोग सन। शरीफ नस्ल। और जिन्हें मारिया वो कौन से? वो कोई टैरा वाला है बार मेन ते। वो कोई बदमाश है, कोई सुन रहे हैं कि वो बंदा थोड़ा जिहा पिछों भी गलत है। अच्छा, क्रिमिनल है। अच्छा, वो कोई पर्चे वगैरह है, लेकिन जब तक तस्दीक ना हो कन्फर्म तो फिर ही होना है ना जी। ठीक है, तो पुलिस कोई मदद नहीं कर रही? पुलिस हाँ यह जरूर है कि साड़ी जिन्नी भी कोशिश है, असी कहने हैं कि पुलिस ने भी चाहिए है कि ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा करन और इन्हां दी पूरी मदद की जाए। यानी कि DIG साहब ਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करांगे, असी भी उन्हां दा तरला लेने हैं कि बराए मेहरबानी ਇਹਦੇ ਤੇ रोशनी पान। देखो जी ये बच्चा नजायज़ मारे तू मैं तलक कलामी अक्सर होंदी है, बिल्कुल होंदी है। तो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं भी भज्जो तो हैर मार के तो बंदे मार के सुट दो। इतनी बड़ी वड्डी ज़्यादती की ना उस बंदे ने। रणवीर जिसका नाम है 10 ने टैरा वाला, उन्हें बड़ी वड्डी ज़्यादती की है तो बैग भी वो गलत है। यानी कि पीछे भी उसका कोई रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ठीक है ना जी। तो बल्कि मरियम बीबी साहबा से भी असी रिक्वेस्ट करांगे कि खुद जड़ा इनू लैन तो CCD नूं दिता जाए ताकि सानू महल्लेदारां नूं भी और उहदे माँ बाप नूं भी इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ठीक है, माइक दिओ जी इन्हां नूं। भाई तुसी की लगदे हो मकतूल दे, मरन वाले दे और जख्मी दे, तुसी की लगदे हो? मैं बहनोई होंदा जी। तुसी बहनोई हो ते किन्ने अरसे तो इस खानदान नाल जुड़े होए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए ने। ते तुहाडे जिहड़े ਹੈਗੇ ਸਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਨ ਝਗੜਾਲੂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੱਠੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕ ਹਟਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ 2 ਦਿਨ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 35-36 साल ਸੀ। अच्छा, ठीक है। पहले इन्हें थप्पड़ मारा, फिर बीच बचाव कराता, छुड़ाता। कोई लोग आ गए, उन्होंने छोड़-छड़ा करा था। मगरों एक मुंडा आया, उन्हें पिस्टल दिता, उन्होंने लिया। अच्छा, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਡੇਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਈ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ठीक ਤੇ है। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? गिरफ्तार किस तरह आया मुलजम? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा बस यही बताया। ਅਸੀਂ ये भी हो ਦੇਖਿਆ सकता है नहीं। खुद पेश हो गया होवे, ਹੋ ਸਕਦਾ। ठीक है ना, खुद भी पेश हो गया होवे कि मैं पुलिस के जरिए हाँ जी। कोई मसला खराब ना होवे। तो तुसी ये दसो कि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लोकल पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो तुसी फिर भी सीसीटीवी ਨੂੰ क्यों देना चाहते हो? क्या ਤੁਹਾਨੂੰ उम्मीद नहीं है कि ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਛ। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कुछ नहीं कर रही? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। अच्छा 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੇਆਮ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰੇਆਮ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਰ। बिल्कुल ठीक है। इस प्रोग्राम से पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जिसमें लोगों को जब कत्ल कर दिया जाता है तो उनको एक वाहिद उम्मीद जो है वो नज़र आती है कि उनको इंसाफ मिल सकेगा, वो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का इंसाफ किस तरह से है वो सबके इल्म में है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन विंग अदालत के ज़रिए लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा पाता है तो फिर लोग जो है वो तोक़ात किसी और पुलिस से लगा लेते हैं, किसी और विंग से लगा लेते हैं। और इसमें भी बात ये दुरुस्त है कि अदालतों से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो मुलज़मान को सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। उसकी वजह ये है कि जितना भी तफ्तीश का निज़ाम है उसमें नाक़िस तफ्तीश बहुत सा जो है वो मुकदमे का ख़राबी का बायस बनती है। फिर ठोस सबूत जमा करने जो है ना करने, वो भी एक वजह होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सीनियर अफसरान इस सारे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ करते हैं, उनकी ना तजर्बाकारी और उनकी भी जो है वो अदम दिलचस्पी की वजह से इस तरह के हीनियस क्राइम के केस जो है वो ख़राब हो जाते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो यही वजह है कि लोग सीसीटीवी की जानिब अपने केस को भिजवाने को तरजीह देते हैं ताकि इंसाफ तो कम से कम उनको मिल जाए। अगर अदालत में केस चलता है तो इंसाफ में ताख़ीर भी हो जाती है और कमज़ोर तफ्तीश की वजह से मुलज़मान को सज़ा भी नहीं मिल पाती है। आप भी मरने वाले के रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं? जी, मैं मरने वाले का कज़न हूँ। अच्छा। दूसरा हम ये साथ ही हमसाए हैं हम। ठीक है। और ये मेरा शागिर्द भी था। आप पढ़ाते हैं? जी, मैं स्कूल टीचर हूँ इधर ही। स्कूल टीचर हैं आप? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और ये मेरे बेटियों की तरह था। तो आप तो स्कूल टीचर हैं, आपसे वो बच्चा पढ़ा भी था, फिर बताएं कि उसमें इस तरह की क्या पता, पूरी ज़िंदगी उसने मेरे सामने ऐसे देख के बात नहीं की, निगाह ही नीचे रखनी हमेशा। जब भी बुलाया फ़ौरन बात सुनी। कभी उसने नहीं कहा कि मेरा रिश्तेदार। उसने हमेशा ही मुझे एक उस्ताद की तरह ट्रीट किया है और हमेशा एक बड़ों की तरह ट्रीट किया है। और जब मैंने कहा, मेरे सामने बात नहीं कभी की उसने, पीछे हट के हाँ सर क्या बात है, और मुझे ज़्यादा लाला ही कहते हैं, लाला क्या बात है बताओ हमें कोई काम है। फ़ौरन जो भी काम का फ़ौरन किया उसने। पूरी ज़िंदगी उसने मेरे साथ ना तो ऊँचा बोला है ना मैं कभी कोई ऐसी बात की जिससे मेरी दिल आज़ारी हो। हमेशा प्यार मोहब्बत से हंसते मैंने कभी कुछ कह भी दिया है ना गुस्से में तो उसने यही कहा है कोई बात नहीं लाला ठीक है। अच्छा ये बताएं कितने क्लास में आपके पास वो आया पढ़ने के लिए? और कितने? वो मेरे पास फर्स्ट अपना अव्वल क्लास से मेरे 5वीं तक मुझसे पढ़ता रहा। 5वीं तक आपसे पढ़ता रहा। अच्छा, तो फिर वो जवान हो गया, शादी भी हो गई। तो मुझे ये बताएं कि मोहल्ले में एक बंदे ने जो है वो गधा बांधने से रोका और वो बड़ा मेहनत मजदूरी करने वाला, बाप के साथ भाई के साथ मेहनत मजदूरी करने वाला जवान था। तो क्या हुआ कि इतनी सी बात
पे नौबत इस हद तक पहुंची, गोलियां चल गई? बिल्कुल मामूली सी बात है, कोई ज़्यादा बात नहीं, थोड़ी सी तलखलामी हुई है। वो जो आप सारी बात आप सुन चुके हैं बार बार, ये कि वो गधे को पट्टे डालने के लिए गया है, तो उसने कहा इधर से मुझे बो आती है, ऐसे पट्टे डालो। उसने कहा यार ये देखो आपका अपना प्लाट है, मेरा एक लहदा जगह पर मैं रखा हुआ है, आपने ये कुत्ते पाल रखे हैं, इनकी आपको बदबू नहीं आती, ये मेरे गधे की अपना बदबू आती है। और ये बात मैं अपने क्या से कह रहा हूँ, उसने कहा ये हम उठा लेते हैं इधर से, तो आता उसने थप्पड़ लगा दिया है, सुनने में आया। और देखें ये जो अपना इसका रिकॉर्ड जो है, जो ज़राए बता रहे हैं, ये क्रिमिनल है और इस इलाके का है भी नहीं। और ये ज़राए ये भी बता रहे हैं ये खुद पेश हुआ है, ये ज़राए बता रहे हैं ये खुद पेश हुआ है, इससे पकड़ा नहीं गया, ये किसी के ज़रिए पेश है, ज़राए बता रहे हैं। पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार करने की भी जहमत पुलिस को नहीं करनी पुलिस पड़ी। ने कोशिश की है, जो ये भी ज़राए बता, पुलिस कोशिश कर रही थी, पुलिस ने कोशिश की है, यकीनन उसने ये अपना ये क्या कहते हैं, उसने अपना कोशिश की है पकड़ने की, मुख्तलिफ रेड किए हैं उसने। तो जब रेड किए और पुलिस ने वो स्टार्ट में अच्छा काम किया, जब उन्होंने ट्रेस के गए वो काम करते रहे। यार जाहिर सी बात, जब वो उसका जो दायरा जो उसके गिर तंग हुआ है, उसके बाद उसने अपने आप को पेश किया होगा ना, ऐसे तो पेश नहीं करता वो। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने काम भी अच्छा किया है, पुलिस ने कोशिश भी किया, तो फिर केस सीसीडी को क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाह रहे हैं कि अभी जो 12 दिन से है ये काम चल रहा है, होना तो ये चाहिए था, ये पहले दिन ही सीसीडी को दे देना चाहिए था, ये केस ही सीसीडी का है, ये आम पुलिस का ये है बनता नहीं है, पहले से दिन से ये बंदा क्रिमिनल है, अगर इसका रिकॉर्ड मिल जाता है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसको फ़ौरन सीसीडी को देना चाहिए। तो ये मुआशरे में नासूर है, ठीक है, इसे ख़त्म करना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म होगा तो ये और लोगों को भी मारेगा, क्योंकि इसकी लाजमी कोई ना कोई तो इसके पीछे होगा ना। जब ये तो तफ्तीश होगी तब पता चलेगा इसके पीछे कौन है। अभी तो हम कबल से वक्त कुछ बात नहीं कर सकते, हमें तो ये ज़राए जो पुलिस बता रही है वही हमने कहना है। ये पुलिस ये कह रही है हमने गिरफ़्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया है, गिरफ़्तारी अभी तक नहीं डाली उन्होंने, क्यों डाली है उनकी अपना मामला, ये इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। नाज़रीन अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां ये दो भाई अपने वालिद के साथ फ्रूट का स्टॉल लगाकर मेहनत मजदूरी करते थे। यही वो जगह थी जहां से वो अपने घर का खर्च पूरा करते थे, अपने खानदान की कफालत करते थे। लेकिन इसी जगह पर एक छोटी सी तल्ख कलामी ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। यही वो मुकाम है जहां एक भाई को कत्ल कर दिया गया और दूसरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हुआ। आइए आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां ये सानिया पेश आया। अच्छा जी, ये वो जाए वक़ुआ है जहाँ पे एक शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। भाई आप क्या उसके लगते हैं मकतूल के? मेरे वो मामूजात भाई। अच्छा मुझे बताएं, ये दुकान है जो गाड़ियों के टायर जो हैं पंक्चर होते हैं, और वो जो गधा बांधा जा रहा था, और कहाँ पे वो बेचते थे किन्नू? और वो ये जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे मामू लोगों ने ना यहाँ पे किन्नू लगाए हुए थे। यहाँ पे वो जो नीचे जमीन पे रखे हुए थे, यहाँ पे उस जगह पे गधा बंधा हुआ था। अच्छा, वहाँ पे गधा बंधा हुआ था, ठीक है। तो ये जगह तो किसी की भी नहीं है ना, उसका कोई ताल्लुक है? मलकियत है, वो भी किसी की मलकियत है, और ना वो उसकी दुकान है, बल्कि वो भी वैसे ही बैठा पे काम कर रहा है, ओपन बैठा। तो अब ये दुकान बंद है जब से वो गिरफ्तार हुआ? हाँ जी, वो बंद है दुकान। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे तो बहुत लोग होंगे, क्या टाइम था उस वक्त? 11:30 बजे दिन, सुबह 11:30 बजे का टाइम था। और उस दिन जो है कोई खास हुआ झगड़ा या इससे पहले भी हो चुका? तलकलामी पहले भी हो? नहीं, आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उससे पहले। अच्छा, उससे पहले नहीं हुआ? नहीं, 10 दिन हुए थे मामू लोगों को इधर किन्नू लगाए हुए। ठीक है, तो इसका कोई किराया भी दे रहे थे किसी? नहीं, वो पूछ के लगाए थे मालिक से, उन्होंने कहा यार कोई नहीं बात, आप 15-20 दिन आपने लगाने लगा लो। मतलब उसने हेल्प की, मदद की उसने, क्योंकि मुकामी थे लोग। सुनने में यही भी आ रहा है कि जिसको इसने बिठाया होगा ना मालिक ने, वो भी इससे किराया नहीं लेता।
अच्छा, ये भी फ्री में बैठा हुआ है जी। तो इसने पीछे कुत्ते रखे हुए थे? जी देखें आप, यहाँ पे गधा बंधा हुआ है, साथ ही उसने कुत्ते बांधे हुए थे। ठीक है। उसको गधे की बदबू आती थी, कुत्ते की बदबू नहीं आती थी। कुत्तों की तो ओपन जगह है, ओपन जगह, बदबू का तो कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। असल में वो क्रिमिनल था, क्रिमिनल माइंड था। ज़राए से ये भी मालूम हो रहा है कि पहले भी उस पर पर्चे हैं, बल्कि ज़राए से नहीं, पुलिस ने हमें बताया कि उसका पहले रिकॉर्ड है। अच्छा, रिकॉर्ड ही तो आपका जब है? मैंने तफ्तीश साहब से पूछा, वो कह रहे थे अभी निकलवाया नहीं है। ठीक है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही हमें कि क्यों नहीं निकलवाया पुलिस ने अभी तक उसका रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जी। आए भाई इधर आप हमारे साथ। यहाँ पे कहाँ पे वो भाई जो है वो यहाँ रहता पे है? यहाँ पे भाई, यहाँ पे किन्नू लगे हुए थे, यहाँ पे बैठ यहाँ जाते पे थे। वो किन्नू लगाकर तो फरोख्त करता था अपने भाई और अपने वालिद के साथ। यहाँ पर उसको गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया। और गोलियाँ मारने वाला ये दुकान का जो टायर पंक्चर होते हैं उनको जो है वो पंक्चर लगाता था। और यहाँ पे वो गधा बांधा गया था जिस पे वो जो है वो झगड़ा जिस वजह से हुआ। और पीछे जो है इसी मुलजिम ने कुत्ते भी रखे हुए थे। और ये किसी की मलकियत नहीं है ना, तो ये इसके पास दुकान है, सिर्फ एक ओपन प्लाट है जो मालिक ने, जो प्लाट का मालिक है उसने खुदा खौफी करते हुए इन्हें भी यहाँ पे किन्नू राके बेचने की इजाज़त दी हुई थी। और इसको भी यहाँ पे टायर पंक्चर लगाने के लिए एक जगह बनाने की इजाज़त दे रखी थी। ये वो वक़ूआ है जो हमने आपको दिखाया है। नाज़रीन, मांगा मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम की गिरफ्तारी भी मुमकिन बनाई। यकीनन गवाहों के बयानात और सबूतों की रोशनी में मुलजिम को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि लवाकिन पुलिस की कार्रवाइयों से गैर मुतमिन है? क्यों हर शख्स इंसाफ के हसूल के लिए अपना केस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले करना चाहता है? क्या ये इदारा लोकल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस से बेहतर इंसाफ फराहम कर रहा है? और क्या मारवाए अदालत इंसाफ के तकाजे कानूनी तौर पर दुरुस्त है? उन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमने माहिर कानून से बात की। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। एक छोटी सी, मैं सबसे पहले इस पे बात करने से आपको एक मिसाल देता हूँ जिसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई 10 से 1 माह पहले, कोट राधा किशन में एक इशू हुआ था कि 2 भाई थे, 2 या 3 थे शायद, उन्होंने केले फ्रूट ख़रीदा कोट राधा किशन में। तो वहाँ पे उनके रेट पे पहले थोड़ा सा तनाज़ा हुआ है। उसके बाद फिर 5000 का नोट उन्होंने दिया कि 140 रुपये नहीं, वो उसने 200 रुपये मांगे। तो 5000 के नोट पे बात हुई है। तो वहाँ से बात चलती चलती वही कुछ रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उनको मर्डर किया। तो उनको फिर अल्हम्दुलिल्लाह फौरी इंसाफ वाला तरीका जो CCD वाला है, जो आजकल हमारी जो CM साहिबा हैं, उन्होंने पुलिस की कोऑर्डिनेशन से और मल्टीपल एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन से लॉ इन्फोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि एक चीज़ इंश्योर हो जाए कि ये क्रिमिनल है तो उसको डेफिनेटली CCD के हवाले किया जाता है। तो लामहाला ये भी उसी तरह का एक जुर्म है। 302 है, 324 है, डेफिनेटली इसमें मर्डर है। क्रक्स उसके एंड ऑफ द डे यही है कि सज़ाए मौत है। तो पहले क्या बाद में क्या, फिर माशरे को ठीक करने के लिए इतना तो फिर होता है। और कोई भी ऐसा माशरा नहीं है पूरी दुनिया में कि किसी वक्त उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आयरन हैंड लेना पड़ता है, लोहे की छड़ी उठानी पड़ती है उनको। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि 100% आगे जुराइम को रोकने के लिए, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप्स लेना पड़ते हैं। और ये जाना चाहिए CCD के पास, ये भी बात जानी चाहिए। इस तरह से इंसाफ भी मिलेगा फौरी, इस तरह से उनको भी कोई दिली तसल्ली होगी जिनके बंदे मर्डर हुए हैं, और मुआशरे की तस्हीह का भी एक मंबा बनेगा। ये बेहतरीन असूल है।
ठीक है, रिट ऑफ स्टेट कायम करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। मैं तो समझता हूँ कि ब्लेसिंग है इस वक्त ये CCD का होना, कि जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं या जो इस हद तक पहुँच चुके हैं कि जो मुआशरे का एक नसूर बनेंगे आइंदा, उनके तदारुक के लिए ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई जो है दूसरी राय नहीं है। बात असल में ये है कि हमारे, आपने वकील भाइयों के हवाले से भी बात की है, कुछ चीज़ें जो हैं ना जी एक इर्तिकाई अमल का हिस्सा हैं। हमारे इस वक्त PG साहब हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं पंजाब, वो फराद शाह साहब, इन कोऑर्डिनेशन विद लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और हमारे जो इस वक्त एहसन भून साहब हैं जो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी एक जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ी काविशें हैं। मैं इसमें आपको बड़ा एक क्लियर कट व्यू दूंगा कि पिछले दिनों कुछ पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में कुछ बिल्स पास हुए हैं जिनमें कुछ सूबाई लेवल पे और कुछ कौमी लेवल पे, जिनमें उन्होंने जो है ना रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए और स्पीडी जस्टिस के लिए किए हैं, जिसमें सिर्फ सियासी मुखालफीन ने पॉइंट सिक्योर करने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे ऐसे हरबे आजमाए हैं कि जो बहरहाल लामहल्ला जो अवाम है ना उसको पता लग गया है कि असल रास्ता वही है जो हम लोग या हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, मुखालिफिन हैं, वो गलत दिखा रहे हैं, और जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है वो कर रही है वो सही रास्ता है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये मैं बता देता हूँ आपको कि पहले लोग एपेलेट वर्किंग में, एपेलेट कोर्ट्स में, जिस तरह हाई कोर्ट आ जाए या सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को अलहदा किया है। उनका असल वजह यही थी कि जितने भी सियासी केस थे वो लटके रहते थे। उन्होंने जो कैमरा में इन होने के लिए, कैमरा शूटिंग के लिए, उनको जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए वहाँ पे वो लगे रहने, और जो असल केस आवाम के केसेस थे उनको टाइम ही नहीं मिलता था। इसलिए वो काविश, मैं अभी इसलिए इस बात को बिल्कुल ज़ोर से कहूँगा कि ये वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वो काम किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को अलग किया है। इसी तरह जब वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स हैं वो नीचे इंसाफ को इंश्योर करवाएंगी कि इसको किस तरह से करना है, या ऊपर उनको उनके रिजल्ट जाएंगे, तो डेफिनेटली एक स्पीड अप बनेगी, उसकी एक तरीक़ाकार बनेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो है ना गवर्नमेंट वो अपनी हद तक तो ये काम कर रही है कि किसी न किसी तरह से स्पीडी जस्टिस को। रही बात वकीलों की, तो वकीलों का काम है, देखें कि उन्होंने मुखालफत में भी आना है और उन्होंने जो मुद्दई बन के भी आना है, ठीक है, उनका वो काम है। सिर्फ जो इन्फोर्समेंट है, एक्सिक्यूशन है स्पीडी जस्टिस की, वो इदारों ने करनी है। अगली बात आ जाती है कि आप जो कह रहे हैं कि FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में लकूनाज, देखें वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को पंजाब लेवल पे भी और कौमी लेवल पे भी, वो छोटी सी वजह बता देता हूँ, कई दफ़ा जब डिस्कशन होती है वो मैं बात करता हूँ। देखें हमारी जो लाहौर की फ़ोर्स है ना इस वक्त, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है पंजाब पुलिस में, लाहौर की मैं बात करने लगूँ, सिर्फ लाहौर डिवीजन की, मेरा ख्याल है कि 20,000 की फ़ोर्स है, जो जिसमें से 10,000 तो ये स्पेशल ड्यूटीज़ पे लगी हुई है, प्रोटोकॉल्स पे है, अदालतों में, नायब कोर्ट्स में हैं, और ये मैं रिक्रूट्स जो सिपाही या कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल के हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं ASI वगैरह जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। बात यह है कि एक बंदा बेचारा मनकेरा से चलता है, सब इंस्पेक्टर जो IO है वो मनकेरा से यहाँ पे रिकॉर्ड आके पेश करना है उसने, या सरगोदा से लाहौर में आके रिकॉर्ड पेश करना है, गुजरांवाला से, डस्का से उसने आके यहाँ पे रिकॉर्ड पेश करना है। अब आगे आके कोर्ट भी वर्किंग कर रही है, ये नहीं कि कोर्ट काम नहीं करती है, उसको भी बड़े मामलात हैं,
उसको भी 200-250 केसेस हैं, वो भी वो देख रहे हैं, जिस मैक्सिमम हद तक कर सकते हैं करते हैं, चीज़ों को प्रोब करके फ़ैसले करते हैं। लेकिन किसी वक्त ऐसा होता है कि इतनी देर में तफ्तीश करनी है और इस एस्पेक्ट को देखना है, तो वो भी फिर बेचारा थकावट और कई ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से डेफिनेटली कुछ लकूनज़ रह जाते हैं। इसका एक मेकानिज़म बनने की ज़रूरत है कि वो फाइलें या वो मिसलें या वो रिकॉर्ड जो अदालतों के सामने पेश होना है, वो कैसे यहाँ पे आए और किस तरह से उस पर जो है वो अदालतें असिस्ट हों, वो मेकानिज़म बनने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तादाद भी थोड़ी है, तनख्वाहें भी थोड़ी हैं और उनके मामलात भी बहुत मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कतई नहीं ये चाहूँगा कि मैं जो अपनी ज़िद में पुलिस वालों को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को किसी बात का कसूरवार ठहरा हूँ। जो असल बात है वो यही है कि बोझ बहुत ज़्यादा है। देखें, लाहौर की आबादी 2 करोड़ है और 20,000 यहाँ पे जो है पुलिस जो है वो इन्फोर्स करने के लिए बैठी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसमें से 10,000 लोग जो हैं वो स्पेशल ड्यूटीज़ पे हैं, प्रोटोकॉल्स पे हैं, या जो मैंने आपको तरतीब बताई है, और बाकी 10,000 जो है ना वो 2 करोड़ की आबादी को लाहौर की को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। तो ये चीज़ें बड़ी एड्रेस करने वाली हैं। तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है पुलिस वालों की, जिस वजह से ये चीज़ें एक्सपीडाइट हो सकती हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एक छोटी सी तल्ख कलामी ने एक मेहनतकश खानदान की जिंदगी उजाड़ दी। वही 2 भाई जो गधा गाड़ी पर किन्नू बेचकर अपने घर का खर्च पूरा करते थे, उन्हीं में से एक भाई आज कब्र में है और दूसरा जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस मजदूर की है जो अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन जब इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो, जब कमजोर तफ्तीश और नाकस शवाहिद कातिल को सजा ना दिलवा सके, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अवाम किस दरवाजे पर दस्तक दे। अहले इलाका के आंसू, उस्ताद की यादें, वालिदैन का दुख और बहनों की दुहाइयां इस बात का सबूत है कि ये कत्ल सिर्फ एक जान का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के सुकून का कत्ल है। रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केसेस को सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद ना रखे बल्कि इंसाफ को उसकी असल शक्ल में फ्राहम करे। मेहनत की कमाई खून में डूब गई, इंसाफ की राह फिर सवालों में खो गई। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।